Students, you can see here that for the CIEs, I am going to give a quick review of the basic concepts which are mostly asked in P1 exam. You can see here on this slide we can see the animals versus plant cell, जिसमें आपको plant और animal cell के differences दिखाए जा रहे हैं. Plant cell में you can see the cell wall is made up of cellulose, and animal cell is not having any cell wall. The presence of chloroplast is possible over there in plant cell, but not every plant cell is having chloroplast. You know about it that the mesophyll cells and any part of the plant which is green in color is having the chloroplast. Not every part of not every cell of the plant is having chloroplast. And on the other hand, animal cell is not having any chloroplast, and it's absent in the animal cell. A large central permanent vacuole is present, covered by tonoplast in the plant cell, which contains cell sap. जबकि animal cell में this is absent. Is animal cell is not having any permanent vacuole. They have small temporary vacuoles. Cytoplasm is reduced to a thin lining. They have such a large vacuole in the center that cytoplasm becomes a thin lining around the vacuole. But in the animal cell, cytoplasm is going to fill the whole cell and the nucleus is present. Animal cell में यही nucleus जो है वो side की तरफ push हो जाता है. अच्छा, presence of the starch grain. इसके अंदर you can see that the starch grains are also present in the chloroplast, while the cytoplasm as well in most of the cells like mesophyll cells. But in animal cell, absence of starch grain is there because वो photosynthesis करेंगे ही नहीं, तो obviously starch grain भी उनके cells में present नहीं होते. Absence of lysosome, इसमें absence of lysosome है जबकि उसमें rhizome present होते हैं. Plant cell is not having any centriole, animal cell is having centrioles. So these are the basic things which are mostly asked, and in the question of the CIE we see these type of questions which examiner is going to ask on these concepts basically. You can see here the next slide that I am going to show you here is related to the osmosis. In osmosis, you know about it that the osmosis is actually the movement of water molecule from higher water potential to the lower water potential. Can you see this? इस U-shaped tube में we see the two different type of solution. ये वाला solution जो है इसमें sucrose की quantity कम है. ये जो larger molecule है ये sucrose के हैं, और जो smaller molecule है they show the water molecule. तो दो different solution हैं which are separated with the help of partially permeable membrane. ये वाला solution different है इस वाले solution से. इस solution में water की quantity ज़्यादा है तो obviously ये dilute है और इसमें water potential ज़्यादा है and higher water potential is there. While this arm of the tube is having lower water potential because इसमें solute की quantity water potential के मुकाबले में थोड़ी सी comparatively ज़्यादा है. जब हम बात करते हैं osmosis की, तो osmosis की definition कहती है कि water potential is always going to move from higher water potential to lower water potential across a semi permeable membrane. अब इसी कॉन्सेप्ट पे अगर एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, मोस्टली P1 में ये कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जा रहे हैं. यू कैन सी हेयर कि ड्यू टू द वाटर पोटेंशियल वाटर इज़ गोइंग टू मूव फ्रॉम हेयर टू देयर, और ये वाला लेवल जो है बी वाली साइड का इट इज़ गोइंग टू ड्रॉप एंड इट इज़ गोइंग टू राइज देयर इन ए साइड. वाई? बिकॉज वाटर जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो सिर्फ वाटर ने ही मूव करना है. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज़ नॉट गोइंग टू मूव, सो सॉल्यूट विल रिमेन ओवर देयर. एग्जामिनर मोस्टली इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा है कि क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द जो सॉल्यूट है क्या वो इंक्रीज़ होगी. ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ वाटर जैसे ही ड्रॉप होगी तो परसेंटेज वाइज एवरेज अगर हम निकालते हैं तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल इंक्रीज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विल इंक्रीज. और मोस्टली ये सॉल्यूट जो है वो सक्रोज या कोई सॉल्ट की फॉर्म में NaCl वगैरह की फॉर्म में दिया जा सकता है. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कम्स द यू कैन सी हियर. इस स्लाइड में आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बेसिकली जो नज़र आ रहे हैं वो क्या हैं? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट. आई हैव टोल्ड यू, आपको प्रीवियसली भी हमने बताया था कि एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है. हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के मीनिंग है कि अराउंड द सेल्स एक वो सॉल्यूशन है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, यानी साइटोप्लाज्म.
और एक वो सॉल्यूशन हो गया जो सेल के बाहर मौजूद है। अब वो वाटर भी हो सकता है प्योरली, या हो सकता है उस वाटर में कोई और सॉल्यूट भी मिक्स हो, तो वो सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो 2 डिफरेंट सॉल्यूशन हो गए। अब अगर 2 सब डिफरेंट सॉल्यूशन हैं और बाहर वाला एनवायरनमेंट जो है वो हाइपोटोनिक है, हाइपोलेस को कहते हैं बेटा, एंड टॉनिक मीन्स सॉल्यूट। अगर बाहर वाला एनवायरनमेंट में सॉल्यूट लेस है और सॉल्वेंट ज़्यादा है तो वो डाइल्यूट हो गया। और इनर जो सॉल्यूशन है इट इज़ हाइपरटोनिक, वाई? बिकॉज सॉल्यूट इज़ मोर एंड सॉल्वेंट इज़ लेस। अब अगर सॉल्वेंट लेस होगा और सॉल्वेंट क्या है, मोस्टली वो वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो अंदर अगर वाटर कम है और बाहर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ वाटर जो होगी वो आउट इनवर्ड हो जाएगी। एंड when the water goes inside the cell, this cell will become swell up and finally it will burst because it is animal cell. Animal cell में कोई cell wall नहीं है which is going to prevent bursting, तो इस वजह से ये burst हो जाता है, उसका lysis हो जाता है। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट समझा यहाँ पे कि जब भी हम सेल को किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में या हाइपोटेनिक एनवायरनमेंट में रखते हैं, इट इज़ गोइंग टू बर्स्ट फाइनली एंड द लाइसिस विल टेक प्लेस। बट यहाँ पे अगर सेकंड कंडीशन हम देख रहे हैं, एंड एग्जामिनर इज़ गोइंग टू आस्क यू दिस वे कि अगर सपोज़ किसी भी एनवायरनमेंट में हमने किसी सेल को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा है एंड देयर इज़ नो चेंज, विजिबल चेंज इन देयर स्ट्रक्चर, इन देयर वॉल्यूम, मास, एनीथिंग, तो वो चेंज क्यों नहीं हो रही है? दिस चेंज इज़ पॉसिबल बिकॉज दिस नो चेंज इज़ विजिबल, वाई? बिकॉज the organism or the cell is kept in isotonic environment. Isotonic की मीनिंग है इंटरनली एंड एक्सटर्नली एनवायरनमेंट सेम है। सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट यानी साइटोप्लाज्म में जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है एग्जैक्टली उतनी बाहर भी है, जिस वजह से क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर अलाउ नहीं हो रही है और उस वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, ना वाटर इन मूव करता है ना आउट मूव कर रहा है। सो इट इज़ आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में हाइपर मीन्स है मोर एंड टॉनिक मीन्स सॉल्यूट। अगर हम किसी भी सेल को किसी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रखते हैं एंड वी कीप इट इन द हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, यू कैन सी हेयर अगर बाहर वाला सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सनट्रेटेड है और अंदर वाला जो सॉल्यूशन जो साइटोप्लाज्म है उसका वो जो है वो डाइल्यूट है एज़ कम्पेयर टू दैट आउटर एनवायरनमेंट। तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट ऑलवेज अट्रैक्ट्स वाटर। तो बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है, वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और सेल के अंदर वाला वाटर जो है इट कम्स आउटवर्ड, राइट? तो एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है। एक्सोऑस्मोसिस मीन्स ऑस्मोसिस की डायरेक्शन सेल से बाहर हो गई, जिस वजह से क्या हुआ, वाटर इज कमिंग आउट ऑफ द सेल एंड सेल इज गोइंग टू श्रिंक। और इस आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से जब सेल श्रिंक होता है एंड इफ़ इट इज़ एन एनिमल सेल वी कॉल दिस प्रोसेस क्रिनेशन। लेकिन अगर यही एनिमल सेल के बजाय प्लांट सेल होता तो हम इसी प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, राइट? और इसी को हम श्रिंकेज ऑफ सेल भी कहते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या हो गया? एक तो हमने प्लाज्मोलाइसिस और क्रिनेशन का डिफरेंस बताया। क्रिनेशन मीन्स इसके अंदर जो स्पाइकी स्ट्रक्चर बन जाते हैं, दिस स्पाइकी स्ट्रक्चर इज गिविंग इट अ शेप ऑफ क्राउन एंड द क्राउन इज ऑल्सो हैविंग द स्पाइकी स्ट्रक्चर्स। In the same way, such type of structures appear on the surface of this animal cell after it gets shrink. तो इस प्रोसेस को क्रिनेशन कहा जाता है एनिमल सेल के केस में। लेकिन अगर यही श्रिंकेज प्लांट सेल में होती तो उसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट वाली बात है, यहाँ पे सेल बर्स्ट होते हुए नहीं हो रहा, बट फाइनली जब सेल में ज़्यादा क्वांटिटी जाएगी वाटर की एंडोऑस्मोसिस की वजह से, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस क्या है, इनवर्ड है, सेल के अंदर पानी जा रहा है, तो इट विल गेट स्वेल अप एंड इट विल फाइनली बर्स्ट और लाइसिस हो जाएगा इसका। एनिमल सेल है अगर, क्योंकि उसके चारों तरफ सराउंडिंग में कोई सेल वॉल नहीं है। बट इफ़ सेल वॉल इज़ प्रेजेंट अराउंड इट तो सेल वॉल इसकी बर्स्टिंग को प्रिवेंट करती है और वो सेल टर्जिड हो जाते हैं, राइट?